السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی سنت آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ میں بھی نہیں مانتی تھی۔ میرے لیے رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام تھا، سحری میں نیند سے لڑائی، افطاری میں بس کھانوں کی فکر۔ میں سمجھتی تھی کہ میں ٹھیک ہوں، میں نماز بھی پڑھتی تھی، روزہ بھی رکھتی تھی، لیکن پھر ایک رات ایسی آئی جس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ ایک سوال نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے کھڑے ہوں تو کیا میں فخر سے کہہ سکوں گی کہ میری سحری اور افطاری آپ جیسی ہے؟ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے اپنی زندگی کو پہلی بار غور سے دیکھا، اور جو دیکھا وہ مجھے پسند نہیں آیا۔ اسی لمحے میں نے ایک فیصلہ کیا، بس ایک سنت اپنانے کا، اور یقین کریں وہ ایک سنت میری زندگی بدل گئی۔ آج میں آپ کو اپنی وہ کہانی سنانے جا رہی ہوں جو شاید آپ کو بھی بدل دے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اسے دل سے سنیں گے۔ وہ سحری جس نے میری زندگی بدل دی۔ میں عائشہ ہوں، ایک عام سی لڑکی۔ رمضان میرے لیے پہلے صرف بھوک اور پیاس کا نام تھا، سحری میں آنکھیں بوجھل، دل میں سستی، اور افطاری میں بس کھانوں کی فکر۔ مگر ایک رمضان ایسا آیا جس نے مجھے اندر سے بدل دیا۔ وہ رمضان کی پہلی سحری تھی۔ امی نے عائشہ سے دروازہ کھولا، بیٹا اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ہو چکا ہے۔ میں نے کروٹ بدلی، دل نہیں چاہ رہا تھا، نیند بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس دن میں نے فوراً آنکھ کھول دی، وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور سحری کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئی۔ امی نے سادہ سا کھانا رکھا تھا، روٹی، دہی اور پانی۔ میں نے بے دلی سے کہا، امی بس یہی کیا؟ کوئی خاص چیز نہیں بنائی کیا؟ امی مسکرائیں، بیٹا سادگی میں برکت ہوتی ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری کیسی ہوتی تھی؟ میں چونک گئی۔ کیسی ہوتی تھی امی؟ امی نے آہستہ آواز میں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری بہت سادہ ہوتی تھی، کبھی چند کھجوریں، کبھی جو کی روٹی، کبھی پانی، مگر اس میں شکر اور قناعت کی خوشبو ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو موخر کرتے، آخر وقت تک انتظار کرتے تاکہ برکت زیادہ ہو۔ میرا دل ہلکا سا کانپ گیا۔ میں نے اپنی پلیٹ کی طرف دیکھا، کیا میں ناشکری کر رہی تھی؟ ایک دن صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سحری ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ میں نے سوچا، میں تو صرف عادت سمجھتی تھی، مگر یہ تو عبادت تھی، برکت تھی، سنت تھی۔ اسی لمحے میں نے نیت کی کہ آئندہ بھی سحری کو بوجھ نہیں سمجھوں گی۔ رمضان کا تیسرا دن تھا، میں نے خود الارم لگایا، امی کو جگانے سے پہلے خود اٹھ گئی، وضو کیا، تہجد کے 2 نوافل ادا کیے۔ اس خاموشی میں مجھے ایسا لگا جیسے آسمان سے نور اتر آیا ہو۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ مجھے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی نے ایک اور واقعہ سنایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن مسلسل روزہ رکھا، گھر میں کچھ نہ تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مجھے کھلاتا اور پالتا ہے۔ میں حیران رہ گئی، ہم تو ایک دن بھی بغیر پسندیدہ کھانے کے بے چین ہو جاتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن فاقے میں بھی شکر گزار۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی شکایتیں گھومنے لگی۔ میں نے بھی گنتی بھاڑ کر کہا، آج یہ کیوں بنا لیا؟ مجھے وہ چاہیے تھا۔ اس دن میں نے پہلی بار کھانے سے پہلے دل سے الحمدللہ کہا۔ افطاری کا وقت قریب تھا، دسترخوان پر پکوڑے، سموسے، شربت میں خوش تھی، مگر اچانک مجھے امی کی بات یاد آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار فرماتے تھے، اگر کھجور نہ ہوتی تو پانی سے۔ میں نے پلیٹ ہٹائی، ایک کھجور لی، اذان ہوئی، میں نے دل میں درود شریف پڑھا اور کھجور کھائی۔ وہ کھجور مجھے زندگی کی سب سے میٹھی چیز لگی۔ امی نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، ذہبت الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا۔
अगर अल्लाह ने चाहा, मैंने पहली बार ये दुआ पढ़ी और मुझे लगा जैसे वाकई मेरा दिल भी तर हो गया हो। एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर अफ्तारी की तस्वीरें देखी। लोग मुकाबला कर रहे थे कि किसकी मेज़ ज़्यादा भरी हुई है। मैंने अपना दस्तरखान देखा और दिल में सवाल उठा, अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरे दरमियान होते तो क्या हम इन्हें अपने इसराफ वाली अफ्तारी दिखा सकते? मेरे दिल पर चोट लगी। मैंने अहद किया, इस रमज़ान मैं कम खाऊंगी, ज़्यादा शुक्र अदा करूंगी और किसी गरीब को खाना ज़रूर खिलाऊंगी। रमज़ान के आधे महीने तक मैं बदल चुकी थी। मैं अब सहरी में शुक्र अदा करती थी, अफ्तारी में सादगी में अख्तियार करती थी और हर रोज़ ये सोचती थी कि मेरा रोज़ा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जैसा है कि नहीं। मुझे एहसास हुआ रोज़ा सिर्फ भूख नहीं, ये दिल की नीयत होती है, नफ्स की इस्लाह होती है, सुन्नत से मोहब्बत का इम्तिहान होती है। ऐ मेरी बहनों, अगर हम वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करती हैं तो आए इस रमज़ान में सहरी और अफ्तारी को सुन्नत के मुताबिक बनाएं, सादगी अख्तियार करें, शुक्र सीखें और हर लुक़मे से पहले सोचें, क्या मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह खा रही हूँ या नहीं। याद रखो, मोहब्बत दावों से नहीं अमल से साबित होती है। रमज़ान सिर्फ खाने का नहीं बदल जाने का नाम है। सहरी और अफ्तारी अगर सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो ज़िंदगी भी सुन्नत के मुताबिक हो जाती है। मैं अब पहले जैसी आयशा नहीं रही थी। सहरी में उठना आसान हो गया था, अफ्तारी में सादगी अच्छी लगने लगी थी, मगर अभी मेरे दिल की असल आजमाइश बाकी थी। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। स्कूल से वापस आई तो शदीद प्यास लगी हुई थी, गला खुश्क, सर दर्द से भारी। दिल में ख्याल आया, काश आज रोज़ा ना रखा होता, मगर फ़ौरन एक ख्याल बिजली की तरह आया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की सख्त गर्मी में भी रोज़ा रखा था। मैं चौंक गई। अम्मी ने एक दिन बताया था, जंगे बदर का दिन, सख्त गर्मी, मैदाने जंग, सहाबा रोज़े की हालत में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़े की हालत में थे। गर्मी, थकन, खौफ, मगर सब्र और तवक्कल। मैंने सोचा मैं तो सिर्फ स्कूल से ही आई हूँ और शिकायतें शुरू हो गई हैं। मुझे शर्म महसूस हुई। मैंने आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह मुझे सब्र दे, जैसे तूने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। उस दिन मैंने फैसला किया कि अफ्तारी से पहले दुआ ज़रूर करूँगी। मैं छत पर गई। आसमान नारंगी रंग में ढल रहा था। मैंने हाथ उठाए, या अल्लाह मेरा ये रोज़ा कबूल फरमा ले, मुझे रियाकारी से बचा ले, मुझे सादगी अता फरमा। आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार मुझे अफ्तारी की जल्दी नहीं थी, मुझे दुआ की लज्जत मिल रही थी। अम्मी ने एक और वाक़या सुनाया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखी हो जाते थे और जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तेज़ हवा से भी ज़्यादा हो जाती थी। मैं हैरान रह गई, यानी रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, देने का भी नाम है, बांटने का भी नाम है। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बुरी खातून खड़ी थी। बेटी, कुछ खाने को मिल जाएगा? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने अम्मी की तरफ देखा। अम्मी मुस्कुराई। आयशा, आज तुम खुद दस्तरखान लगाओगी? मैंने सोचा, हमने तो आज खास अफ्तारी बनाई है, अगर दे दी तो हमारे लिए कम पड़ जाएगी। फिर मेरे दिल के अंदर से आवाज़ आई, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो क्या करते? मैंने बगैर सोचे समझे समोसे, पकोड़े, खजूरें एक प्लेट में रख दी और उस खातून के हाथ में दे दी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। मेरे दिल में ऐसी खुशी आई जो मैंने कभी महसूस ही नहीं की थी। उसी रात मैं देर तक जागती रही। मैंने सोचा, हम अफ्तारी में कितनी चीज़ें बनाते हैं, कितना ज़ाया करते हैं और कितने लोग भूखे सोते हैं। मेरे दिल पर बोझ था। मैंने तो हज्जत में खड़े होकर कहा, या अल्लाह मुझे दिखा दे कि असल रमज़ान क्या होता है। अम्मी ने एक आखिरी वाक़या सुनाया। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ ना था,
चंद खजूरें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी दूसरों को दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए खर्च करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। ये सुनकर मेरा दिल हिल गया। मैंने सोचा मैं तो डर के मारे एक प्लेट देने में हिचकिचा रही थी और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सब कुछ दे देते थे। रमज़ान के 20वें दिन तक मैं बदल चुकी थी। अब मैं अफ्तारी से पहले किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर कुछ देती थी। मैं सहरी में नवाफिल पढ़ती थी। मैं कम बोलती, ज़्यादा सोचती थी और हर दिन खुद से सवाल करती थी, क्या आज मेरा रोज़ा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आएगा? हम सब कहते हैं हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, मगर क्या हमारी सहरी सुन्नत वाली है? क्या हमारी अफ्तारी सादगी वाली है? क्या हमारा रमज़ान सखावत वाला है? अगर नहीं तो फिर हमें खुद को बदलना होगा। ऐ मेरी बहनों, रमज़ान सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं, ये आंखों का रोज़ा है, ज़ुबान का रोज़ा है, दिल का रोज़ा है। अगर तुम सहरी में उठकर 2 नवाफिल पढ़ लो तो तुम अफ्तारी में 1 प्लेट किसी गरीब को दे दो। अगर तुम खाते वक्त शुक्र अदा कर लो तो यकीन करो तुम्हारा रमज़ान कभी वैसा हो सकता है जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। मोहब्बत अल्फाज से नहीं अमल से साबित होती है। सादगी में सुकून है और जो रमज़ान में बदल जाए वो पूरी ज़िंदगी संवर जाता है। रमज़ान का 21वां रोज़ा था। आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। घर का माहौल बदल चुका था। अम्मी की आवाज़ में संजीदगी थी। अब्बू ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने लगे थे और मैं अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी, जैसे कुछ अहम होने वाला हो। अम्मी ने कहा, बेटा ये आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के दिन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में इबादत और भी ज़्यादा कर देते थे। मैंने पूछा, अम्मी क्या वाकई इतनी मोहब्बत करते थे? अम्मी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते, रातें जागते, घर वालों को भी जगाते और इबादत में मशगूल हो जाते। मेरा दिल धड़क उठा। मैं तो अभी तक सिर्फ कोशिश कर रही थी और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में खुद को मुकम्मल इबादत में डूब देते थे। अम्मी ने बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान के आखिरी 10 दिन इत्तिकाफ़ फरमाया करते थे। मस्जिद में रहते, दुनिया से कट कर सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाते। मैंने सोचा हम तो मोबाइल से भी अलग नहीं हो सकते और वो दुनिया के सबसे अजीम इंसान सब कुछ छोड़कर रब के हजूर बैठ जाते थे। उस दिन मैंने मोबाइल बंद कर दिया। पहली बार मुझे सुकून महसूस हुआ। रमज़ान की 27वीं रात थी। घर में हल्की सी रोशनी थी। सब जाग रहे थे। कुरान की आवाज़ आ रही थी। मैंने भी वज़ू किया, जाए नमाज बिछाई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, या अल्लाह अगर आज शबे कदर है तो मुझे खाली ना लौटाना। मैंने वो दुआ परी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ फरमा दे। ये अल्फाज पढ़ते हुए मैं टूट गई। मेरे गुनाह, मेरी गफलत, मेरी शिकायतें सब आंखों के सामने आ गई। मैं रो रही थी, लेकिन ये आंसू गम के नहीं थे, ये सफाई के आंसू थे। सजदे में सर रखा तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिल हल्का हो गया हो। मैंने कहा, या अल्लाह मैं वो आयशा नहीं रहना चाहती जो सिर्फ खाने के लिए रोज़ा रखती थी। मैं वो आयशा बनना चाहती हूँ जो तेरे लिए रोज़ा रखे। और इसी लम्हे मुझे लगा जैसे वाकई मेरी नई पैदाइश हो गई है। चांद रात से 1 दिन पहले मैंने दस्तरखान लगाया। सादा अफ्तारी, खजूर, पानी, रोटी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी आज हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कबूलियत चाहिए। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। रमज़ान ख़त्म हुआ, मगर मैं ख़त्म नहीं हुई। मैंने नमाज़ें जारी रखी, मैंने सादगी जारी रखी, मैंने सदका जारी रखा और हर सहरी और अफ्तारी मुझे याद दिलाती रही, ये तरबियत थी, अब इस पर कायम रहना है। ऐ मेरी बहनों, रमज़ान सिर्फ 30 दिन का मेहमान है, मगर जो दिल में उतर जाए वो पूरी ज़िंदगी का साथी बन जाता है। अगर तुम भी बदलना चाहती हो तो सहरी को सुन्नत बना लो, अफ्तारी को सादगी बना लो और शबे कदर को अपनी नई ज़िंदगी की इब्तिदा बना लो। याद रखो, जो रमज़ान में अल्लाह से जुड़ जाए वो कभी तन्हा नहीं रहता। जो सुन्नत से मोहब्बत करे, अल्लाह इससे
عزت دیتا ہے، اور جو سجدے میں ٹوٹ جائے وہ دنیا میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی ہمیں ایسا ہی رمضان گزارنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں بدلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق دے، اللہ ہم سے ہر برے کام دور کروا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔